Good morning, dear students. Once again, welcome to Conceptum classes. In this session, we will discuss trigonometric functions, the values of angles and trigonometric functions when applied to angles and radians. We will discuss all this in this session. But before starting, let me remind you that if you are the first time viewer of this channel, please don't forget to subscribe it. So let us move towards our topic, is the trigonometric functions. Trigonometric functions. My dear students, if you remember, in the earlier classes, that is in the 9th or in the class 10th, you have studied trigonometric ratios. You have studied trigonometric ratios of an acute angle. As the ratio of sides of a right angled triangle. Here in trigonometric functions, we will use the same trigonometric ratios. We will use the same idea of trigonometric ratios now to angles. Now we will extend it to angles in radians. We will extend the idea of trigonometric ratios to angles, but here angles are in radians. But here angles are in radians. So how to do this? Let us draw a unit circle. Let us draw a unit circle. What is unit circle? A unit circle is a circle having a radius 1. This is x-axis and this is y-axis. This is the origin O. Draw a unit circle. A circle having a radius 1. Draw a unit circle. What is circle? Unit circle, a circle of radius 1. A circle of radius 1. Let me name these points where the circle intersects the axes OX at A, OY at B, OX dash at C, and OY dash at D. Now clearly, this point A, it lies on x-axis, therefore its coordinates will be 1 and 0. Point B lies on y-axis, its coordinates will be 0 and 1. Point C lies on x-axis but negative direction of x-axis, so it is -1, 0. And point D lies on the negative direction of y-axis, its coordinates will be 0 and -1. I hope you understand. Now take a point P on the arc AB. Now take a point P on the arc AB. Let the coordinates of point P be A and B. Let the coordinates of P be A and B. From P, you draw PM perpendicular on OX. Draw PM perpendicular on OX and join OP. Join OP. Join O to P.
Now what is this OP? It's the radius of the circle, and the radius of circle is 1. Therefore this OP is 1. Here OP is 1. What is OM? OM will be A, because the coordinates of point P are A and B. That means OM is A and PM is B. तो OM A के बराबर और PM B के बराबर होगा. तो OM A के बराबर होगा और PM B के बराबर होगा. Now you take the right angle triangle. Now let angle subtended by arc AP at the center be X. Let the angle subtended by arc AB at the center be X. चलो मान लिया इस AP आर्क ने, इस आर्क AP ने सेंटर पर X एंगल बनाया. That means length of arc AP, it will be X also. Therefore length of arc AB will be X. Now you take a right angled triangle OMP. Now in a right angled triangle OMP, OM over OP, it is base by hypotenuse. Base by hypotenuse is cos, so it will be cos X. And OM by OP, OM is 1, OM is A, and OP is 1, is equal to cos X, or we say cos X is equal to A. This is an important result. You note it down. Now PM over OP, it will be sin X, perpendicular by hypotenuse sin X. PM is B, OP is 1, is equal to sin X. So that means sin X is equal to B. Another important result. Now you look at the figure. Cos X is equal to A. Cos X is equal to A. What is A? A is the first coordinate of P, and sin X is equal to B. तो sin B क्या है? Second coordinate of P. That means sin X is equal to B. यानी इसका मतलब हुआ जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो cos का वैल्यू होता है, और जो सेकंड कोऑर्डिनेट है वो sin का वैल्यू होता है. अगर मैं यहाँ ये लगाऊं तो 1 किसका वैल्यू होगा? 1 होगा cos 0 का, क्योंकि यहाँ 0 डिग्री एंगल बनता है, और 0 होगा sin 0 का. अगर यहाँ लगाऊं तो cos 90 0 होगा, sin 90 1 होगा. यहाँ लगाऊं तो cos 180 -1 होगा, और cos sin 180 0 होगा. यहाँ लगाऊंगा तो sin cos 270 0 होगा, और sin 270 -1 होगा. तो उस पर हम बाद में आ जाएंगे. तो पहले आप इतना नोट करिए. Let's move further. Now, in one rotation, an angle of 360 degree is subtended, or 360 means 2 pi radians. यानी मान लिया एक पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ, यानी 0 से स्टार्ट हुआ, 0 से स्टार्ट हुआ, क्योंकि यहाँ थीटा जो है वो 0 होगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर पॉइंट है तो 0 होगा. तो 0 से स्टार्ट हुआ. कहां से स्टार्ट हुआ? 0 से. पहुंचा बी पर, यानी ये पाई बाई 2 होगा. फिर आहिस्ता आहिस्ता पहुंचा एक्स डैश पर, यानी ये पाई होगा 180 की पर, और फिर होगा वाई डैश पर, यानी ये 3 पाई बाई 2 होगा, और फिर आएगा यहाँ 0 पर, यानी यहाँ पर 2 पाई एंगल होगा. Go in one rotation, angle subtended is
2 पाई रेडियन। यानी अगर ए से स्टार्ट हुआ, बी तक पहुंचा, तो एंगल ए ओ बी कितना होगा? तो एंगल ए ओ बी 90 डिग्री का होगा, यानी पाई/2 का होगा। एंगल बी ओ सी, एंगल ए ओ सी कितने का होगा? एंगल ए ओ सी स्ट्रेट एंगल है तो पाई रेडियंस का होगा। एंगल ए ओ डी कितना होगा? 270 का होगा, तो 3 पाई/2 होगा। और फिर यह जब पॉइंट फिर ए पर पहुंचा, तो ये कौन सा एंगल बनाएगा? कंप्लीट एंगल, यानी पाई एंगल बनाएगा, 2 पाई एंगल बनाएगा। तो दीज एंगल्स पाई/2 पाई, 3 पाई/2, 2 पाई, these are all the multiples of pi/2. So these angles are the multiples of pi/2. Angles which are the multiples of pi/2, they are called quadrantal angles. Angles which are the multiples of pi/2 are called quadrantal angles. So let us see these quadrantal angles. So let us apply these quadrantal angles to point to here. Here cos 0, जब पॉइंट यहाँ ए पर होगा, तो जो एंगल बनेगा सेंटर वो 0 होगा, क्योंकि पॉइंट यहाँ पर है। तो एंगल जो बनेगा वो 0 होगा। दैट मीन्स cos 0 is 1, sin 0 is 0, sin 0, क्योंकि पहला कोऑर्डिनेट cos का वैल्यू होता है, दूसरा sin का वैल्यू होगा। अब ये पॉइंट ए से निकला और पहुंचा बी पर, यानी कहां पर पहुंचा? पाई/2 पर। तो दैट मीन्स cos पाई/2, पहला वैल्यू cos का तो 0, sin पाई/2 1। इसी तरह ए से स्टार्ट हुआ, पहुंचा पाई/2 पर, फिर पहुंचा सी पर, यानी पाई पर पहुंचा, तो cos पाई हो गया -1 एंड sin पाई हो गया 0। फिर सी से पहुंचा डी पर, यानी 3 पाई/2 पर पहुंचा, तो दैट मीन्स cos 3 पाई/2 is equal to 0 and sin 3 पाई/2 is equal to -1। फिर डी से निकला तो पहुंचा ए पर, तो एक कंप्लीट रोटेशन हो गई, तो पहुंचा ये 2 पाई पर। तो दैट मीन्स cos 2 पाई is equal to 1 and sin 2 पाई is equal to 0. These are all quadrantal angles. Let me summarize all this in a table. I hope you have understood this. You pause the video and rub it down. Let me summarize this all in a table. यहाँ मैं एक टेबल बनाऊंगा। 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270 and 360। यहाँ पूछेगा नहीं, तो मैं यहाँ 0, 30, 45, 60, then 90, then 180, then 270 and then 360। ये डिग्रीज में है।
अब इसको मैं रेडियंस में लिखूंगा। 0 तो 0 ही होगा। 30 π/6, 45 π/4, 60 π/3, 90 π/2, 180 pi, 370 3 π/2, and 360 means 2 pi। अब यहाँ मैं साइन कॉस टेन कॉट लगाता हूँ। साइन कॉस टेन कॉट सेक एंड कोसेक। ना अभी आपने देखा साइन जीरो जीरो के बराबर होता है, कॉस 0 1 के बराबर होगा। देन साइन 30 इसके बराबर होता है। साइन 30 टेंथ में आपने किया हुआ है कि साइन 30 होता है 1/2, क्योंकि 0 1 2 3 एंड 4, हर एक को 4 से डिवाइड कर दो, 1/2। तो ये 0 ये 30 ये 1/2 होगा। cos 45 sin 45 1/√2, sin 60 √3/2, sin 90 होता है 1। अब इसको उल्टा कर दो, 1 हो गया √3/2, हो गया 1/√2, हो गया 1/2 और ये 0। ये टेबल यहाँ तक 90 तक आपने टेंथ में किया हुआ है। तो 10 sin डिवाइड बाय cos 0/1 0, 1/2 divided by 2 it is 1/√3, it is 1, it is √3, 1/0 is not defined। then cot इसको उल्टा कर दो, not defined, √3 1 1/√3 and 0। तो यहाँ sec cos का उल्टा 1 2/√3, 1 by this is √2, this is 2, this is 0/1 is not defined। तो यहाँ उल्टा करेंगे, इसको यहाँ लाएंगे, इसको यहाँ ले जाएंगे, तो ये 2 ये √2, ये 2/√3 और ये 1। इतना सा टेबल आपने जनाब 10th क्लास में किया हुआ है। अब ये रह गया पाई, 3π/2 एंड 2 पाई। तो साइन पाई साइन पाई हो गया 0, साइन 3 पाई हो गया -1, एंड साइन 2 पाई हो गया 0, साइन 2 पाई हो गया 0, कॉस पाई हो गया -1, cos 3π/2 हो गया 0, एंड cos 2 पाई हो गया 1। then 10 sin by cos 0 divided by -1 is 0, -1 divided by 0 is not defined। then 10 2 pi 0/1 is 0। then cot उल्टा करो, यस cot हुआ 10 का उल्टा, 10 का उल्टा कर दो, 0/1 it is not defined, 0/1 तो 1/0 not defined। cot pi not defined, 10 का उल्टा होगा, तो 0/1 1/0, तो ये भी आएगा नॉन डिफाइंड। और ये cot 2 पाई नॉन डिफाइंड। sec cos का उल्टा, -1 का उल्टा हो गया -1, 0 का उल्टा हो गया नॉन डिफाइंड, और फिर 1 का उल्टा हो गया 1। then sec होता है cos का, sec हो गया cosec हो गया sin का उल्टा, 0/1 हो गया नॉन डिफाइंड, -1/1 हो गया -1, 0/1 हो गया नॉन डिफाइंड। these are the values।
Now let us move to sign conventions. How we assign signs. तो साइन कन्वेंशन के लिए मैं आपको एक फार्मूला बताता हूं। एक छोटा सा फार्मूला आप याद रखो साइन कन्वेंशन के लिए। साइन कन्वेंशंस, साइन कन्वेंशंस मतलब हुआ साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक कब माइनस होते हैं और कब प्लस होते हैं। तो अगेन एक यूनिट सर्कल ड्रा कर दो। तो ये होता है हमारा 0, ये होता है हमारा पाई/2, ये होता है हमारा पाई, और ये होता है हमारा 3 पाई/2, और जब ये वापस यहाँ पहुंचेगा तो पाई होगा, 2 पाई होगा। इसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको हम कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको हम कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। अब साइन कन्वेंशन के लिए आप एक छोटा सा एक नुस्खा याद रखिए। आफ्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आफ्टर, सेकंड क्वाड्रेंट में स्कूल, थर्ड क्वाड्रेंट में टू, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉलेज। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। अब हर एक वर्ड का पहला पहला अल्फाबेट लीजिए। ये ए ले लिया, इसका मतलब है ऑल पॉजिटिव। ए स्टैंड्स फॉर ऑल पॉजिटिव, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगी वो पॉजिटिव होगी। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से लेकर पाई/2 तक जो एंगल्स आते हैं उनमें साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक सब पॉजिटिव होंगे। क्या होंगे? पॉजिटिव। यानी साइन 30 भी पॉजिटिव होगा, कॉस 30 भी पॉजिटिव होगा, टेन 30 भी पॉजिटिव होगा, कॉट 30 भी, सेक 30 भी, कोसेक 30 भी, साइन 60 भी। यानी 0 से लेकर 90 तक जो भी एंगल है वो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं। ना स्कूल, स्कूल ले लो फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लेटर स्टैंड्स फॉर साइन, और साइन का इनवर्स, साइन का इनवर्स है कोसेक। यानी सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन और कोसेक, साइन और कोसेक ये दो पॉजिटिव होंगे। क्या होंगे? पॉजिटिव। बाकी जो बचा दैट मींस कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक ये सब नेगेटिव होंगे। क्या होंगे? नेगेटिव। सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इसमें नेगेटिव होंगे। अब थर्ड में पूछो, टी स्टैंड्स फॉर टेन, और टेन का इनवर्स कॉट, और टेन और कॉट इसमें पॉजिटिव होंगे, बाकी सब साइन, कॉस, सेक, कोसेक ये इसमें नेगेटिव होंगे, इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होंगे। अब फिर है कॉलेज, ले लो सी, सी स्टैंड्स फॉर कॉस, कॉस का इनवर्स सेक, यानी कॉस और सेक यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे, बाकी साइन, बाकी सब साइन, टेन, कॉट, कोसेक ये सब नेगेटिव होंगे। तो ये इस तरह से हम साइन कन्वेंशन देंगे। फॉर एग्जांपल अब मेरे पास है साइन 90 प्लस थीटा, समझ लेना बात। साइन 90 प्लस थीटा, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये जो है ना एंगल ए ओ बी, ये एंगल ए ओ बी ये 90 हुआ, 190। अब इसको प्लस थीटा करेंगे तो प्लस थीटा यानी इसका ये थीटा, अगर मैं ये एंगल मानता हूं ये थीटा, तो ये हुआ 90 प्लस थीटा। यानी ये 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में रहेगा? ये सेकंड क्वाड्रेंट में आया, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, यानी ये साइन का जो भी वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा। अब अगर मैं करूंगा साइन 90 माइनस थीटा, यानी ये 90 है, थीटा इसमें माइनस करेंगे तो वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, जब मैं इसमें थीटा माइनस करूंगा तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा।
तब भी इसका वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगा। इस तरह से हम डिफरेंट वैल्यूज निकालते हैं। नाउ कन्वर्शन, अब मैं कन्वर्शन की बात करता हूँ। कन्वर्शन में क्या होता है, याद रखना, साइन कॉस में कन्वर्ट होता है, कॉस साइन में कन्वर्ट होता है, टेन कॉट में कन्वर्ट होता है, और कॉट टेन में कन्वर्ट होता है, सेक कोसेक में कन्वर्ट होगा, और कोसेक सेक में कन्वर्ट होगा। अब ये कन्वर्शन कब होती है, याद रखना मेरे बच्चों, कन्वर्शन तभी होगी जब हमारे पास पाई बाई 2 होगा। पाई बाई 2 होगा तो कन्वर्शन होगी। अगर पाई बाई 2 नहीं होगा, नो कन्वर्शन, कोई कन्वर्शन नहीं होगी। यानी इसका मतलब हुआ, अगर हमारे पास पाई बाई 2 है, 3 पाई बाई 2 है, 5 पाई बाई 2 है, तो कन्वर्शन होती है, अब अगर हमारे पास पाई है, 2 पाई है, 3 पाई है, तो नो कन्वर्शन, तो उसमें कन्वर्शन होती नहीं है। अब ये पाई बाई 2, 3 पाई बाई ये क्या है, ये मैं बताता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो कन्वर्शन होगी क्योंकि पाई बाई 2 मेरे पास इधर है, तो ये सीधा कॉस थीटा होगा, क्योंकि साइन कन्वर्ट होता है कॉस में, तो कॉस थीटा होगा। अब अगर मेरे पास कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा होगा, तो कन्वर्शन होगी क्योंकि पाई बाई 2 है मेरे पास, तो कॉस साइन में कन्वर्ट होगा, तो ये हो गया साइन थीटा। अब अगर मेरे पास साइन पाई प्लस थीटा होगा, क्या कन्वर्शन होगी, नहीं, कन्वर्शन नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पाई बाई 2 है, यहाँ पाई है, जब पाई होगा 2 पाई होगा, 3 पाई होगा, 4, तो कोई कन्वर्शन नहीं, ये सेम रहेगा। तो साइन पाई बाई 2 ये साइन थीटा ही रहेगा, इसमें कोई कन्वर्शन नहीं होगी। अब अगर कॉस पाई प्लस थीटा है मेरे पास, तो ये कॉस पाई ही रहेगा, कॉस थीटा ही रहेगा, क्योंकि पाई है मेरे पास, तो कोई कन्वर्शन नहीं होगी। कन्वर्शन तभी होगी जब पाई बाई 2 होगा या मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होगा। यानी मेरे पास अगर है साइन 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, ये तो मल्टीपल है पाई बाई 2 का, तो कन्वर्शन होगी, ये cos थीटा के बराबर आएगा। अब अगर मेरे पास cos 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा होगा, तो भी कन्वर्शन होगी, क्योंकि 3 पाई है मेरे पास, तो ये साइन थीटा के बराबर होगा। इस तरह से कन्वर्शन होती है, लेकिन जब पाई होगा तब कोई कन्वर्शन नहीं होती है। कन्वर्शन तभी होगी जब हमारे पास पाई बाई 2 यानी 90 होगा ना। मैंने लिखा साइन पाई बाई 2 इज इक्वल टू कॉस थीटा। कैसे कैसे अभी मैंने दिखाया आपको। अगर ये मेरे पास है कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, यहाँ 0 है, यहाँ पाई बाई 2 है, यहाँ पाई है और यहाँ 3 पाई बाई 2 है। अब मेरे पास है पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो ये एंगल मेरा पाई बाई 2 है, ये एंगल एओडी एओबी मेरा पाई बाई 2 है। अब इसको मैं थीटा ऐड करूंगा, तो ये थीटा होगा, ये थीटा होगा, तो साइन पाई बाई 2 बाई थीटा सेकंड क्वाड्रेंट पे होगा, तो पॉजिटिव वैल्यू होगा। क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू। अब अगर मेरे पास cos पाई बाई 2 प्लस थीटा है, cos पाई बाई 2 प्लस थीटा यानी cos होगा पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो किस क्वाड्रेंट में आएगा, फिर भी वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होंगे, यानी cos पाई बाई 2 प्लस थीटा ये हो गया माइनस साइन थीटा के बराबर। इसके बराबर होगा माइनस साइन थीटा, क्योंकि cos का वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस होता है, therefore it is minus sin theta। अब अगर मेरे पास tan पाई बाई 2 प्लस थीटा होगा, तो फिर पाई बाई 2 प्लस थीटा फिर सेकंड क्वाड्रेंट में ही आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक का वैल्यू पॉजिटिव है, बाकी सबका नेगेटिव है, तो ये माइनस कॉट थीटा के बराबर होगा। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा।
कि ये कन्वर्शन कैसे होती है। So you pause the video and note it down. अब अगर मेरे पास वैल्यू निकालना है, we have to find the value of sin 120. कैसे निकालेंगे sin 120 का वैल्यू? तो देखो sin 120 का वैल्यू कैसे निकलेगा। ये पाई है, ये पाई बाई 2 है, ये पाई है, ये मेरा 0 है, ये पाई है, ये 3 पाई बाई 2 है, और जब यहाँ पहुँचेगा फिर ये पाई होगा। अब 120 प्लस sin 120, sin 120 इसको मैं अगर लिखूंगा sin 90 प्लस 30, sin 90 प्लस 30, 90 प्लस 30 120 होगा। तो ये मेरा 90 का एंगल है, इस 90 के एंगल को मैं 30 का एंगल ऐड करूंगा, ये 30 का एंगल ऐड हुआ, तो 90 प्लस 30, ये 90 और ये 30 हो गया 120। अब ये 120 किस क्वाड्रेंट में रहेगा? ये रहेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, तो ये हो गया साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, दैट मींस cos थीटा, इट इज cos 30, एंड वैल्यू ऑफ cos 30 क्या है हमारे पास? जो वैल्यू ऑफ cos 30 है वो sin 120 का वैल्यू होगा, दैट मींस sin 120 is equal to cos 30, and cos 30 is root 3/2, sin 120 का वैल्यू root 3/2 होगा। अब इसी तरह अगर मेरे पास कुछ भी बताऊं, cos 120, तो ये हो गया cos 90 प्लस 30, तो cos 90 प्लस 30 फिर सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, तो cos सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, तो ये हो गया माइनस साइन 30 डिग्री, साइन 30 का वैल्यू 1/2, cos 120 इज -1/2। इस तरह से हम वैल्यू निकालते हैं। अब अगर मेरे पास है फॉर एग्जांपल tan 120 डिग्री और tan चलो मान लिया 120, इसको मैं लिखूंगा tan 90 प्लस 30, तो ये हो गया cot 30, लेकिन किस क्वाड्रेंट में? 90 प्लस 30 हमेशा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, तो ये माइनस cot 30 होगा। तो cot 30 का वैल्यू लगाओ, cot 30 का वैल्यू माइनस cot 30 इज माइनस रूट 3 आई थिंक। इस तरह से हम वैल्यूज निकालते हैं। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जनाब डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।